پیارے دوستو، ایک باپ نے اپنی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی اور شادی کی رات کیا ہوا آپ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں 14 سال کی تھی جب میرے باپ نے مجھ سے شادی کی، اور جس رات اس نے مجھ سے شادی کی اس رات مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ تب مجھے اپنی بیوی بنائے گا، اور جو کچھ اس رات ہوا وہ سب سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ جیسے جیسے میری بڑی عمر کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سی چیزوں کی سمجھ آنے لگی، اور یہی بات میرے لیے بہت مشکل بن گئی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو میرا جینا مشکل ہو گیا۔ جس ابا کو میں بہت نیک اور آئیڈیل سمجھتی تھی، اس کا کردار میرے لیے باعث شرم بن چکا تھا۔ جو کچھ سالوں سے میرے ارد گرد ہو رہا تھا، جب تک میں اس سے بے خبر تھی میری زندگی پرسکون تھی، اور جب کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ آ رہا تھا تو میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہ جان کر شاید آپ کی روح بھی کانپ اٹھے کہ کس طرح میرے باپ نے میرے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی۔ میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتی تھی، اماں کو تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے ابا ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ ابا ہم بہنوں کے کھانے پینے کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کچھ حرکتیں بہت عجیب سی تھیں۔ ابا زیادہ تر وقت ہم بہنوں کے ساتھ گھر میں گزارتا تھا، اور ابا کی نظریں ہر وقت ہمیں اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہوتی تھیں۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ابا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہماری ایک ایک حرکت پر ابا کی نظر ہو۔ ہم بہنوں کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دیا تھا۔ انہوں نے نہ ہمیں اسکول کی تعلیم دلوائی اور نہ ہی ہمیں پڑھنے کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ کھانے پینے کا سامان ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہوتا تھا، ہم کھل کے کھاتے پیتے تھے۔ ہمارا باپ ہمیں اپنے سینے سے لگا کر کہتا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو گھر سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا کو زمانے کا بہت زیادہ خوف ستاتا تھا۔ ہم میں سے جب بھی کوئی کسی کام سے بھی باہر جانے کی اجازت مانگتا تو ابا فوراً انکار کر دیتے اور کہتا کہ میں بہت مشکل سے تم لوگوں کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی بری نظر تم لوگوں پر پڑے۔ بازار سے سودا سلف لانا، ہمارے لیے کوئی بھی چیز خریدنا، سب کچھ ابا خود ہی کیا کرتے تھے، اور جاتے جاتے گھر کو باہر سے تالا بھی لگا کر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا کہ ابا کی بیٹیاں ہیں، پھر بھی ابا کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، لیکن ہم بہنیں تو بہت ہی اچھی اور ابا سے محبت کرنے والی تھیں۔ اکثر میری بڑی بہن ذکیہ مجھے سمجھاتی کہ ابا جو کچھ کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ابا نے دنیا میں ہم سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے۔ ویسے بھی ہماری اماں کے انتقال کے بعد ابا نے اکیلے ہی ہمیں پالا ہے، اس لیے ابا کو حد سے زیادہ ہماری فکر ہے۔ لیکن ابا کی یہ حد سے زیادہ فکر ہمارے لیے ایک عذاب ثابت ہوئی۔ جیسے ہی میری بڑی بہن جوان ہوئی تو میرے ابا کو ان کی اور فکر ستانے لگی۔ ابا نے ان کا چھت تک جانا بھی بند کر رکھا تھا۔ ابا کی ایک بات تو بہت ہی عجیب تھی، ابا کبھی کسی بہن کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے لے جاتا تو کبھی کسی بہن کو۔ پتہ نہیں ابا کی حفاظت کا یہ کون سا طریقہ تھا جو ہم میں سے کسی کو پسند نہیں تھا۔ اب ابا سب سے بڑی بہن کو لے جا کر کمرے میں گھنٹوں اپنے ساتھ بند کر لیتا، اور جب وہ باہر آتی تو اس کی شکل پر عجیب سی رنگت ہوتی۔ ہمارے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہتی، اور ہمیں اس بات سے انجان تھے کہ ابا ان کو کمرے میں کیوں بلاتا ہے۔ ہم 9 بہنیں تھیں، میں 6 نمبر پر تھی۔ مجھ سے چھوٹی بھی 5 بہنیں اور تھیں۔ بڑی 2 بہنوں 18 سال کی ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں ابا کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزار رہی تھیں، سالوں گزر کے۔ اب میں سے کسی کی بھی 4 دیواری سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں اکثر ہی گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتی۔ شیزہ آپی اکثر کہتی تھیں کہ ہمارا گھر ہمارے لیے جیل بن گیا ہے، اور اب وہ مزید جیل میں نہیں رہنا چاہتی۔ پھر ایک دن یہ بات ابا کو پتہ چل گئی۔ پہلی دفعہ میں نے ابا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے ابا کو جب یہ حرکت دیکھی تو ابا کو بہت غصہ آیا، کیونکہ میری بڑی بہن شیزہ کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور ابا نے خود اسے دیکھ لیا تھا۔ شیزہ آپی کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر باہر گھوم آئے پھر واپس آ جائے گی، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ پکڑی گئیں۔
अब्बा ने शीजा बाजी को चोटी से पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले आए और बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे। ये सारी बहनें परेशान एक दूसरे को देख रही थीं। अब्बा के आगे किसी की ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि अब वो बहुत गुस्से में थे। आप भी पूरी तरह अब्बा के रहम करम पर थे। जब अब्बा ने शीजा आपी पर अपना गुस्सा निकाल दिया, अब्बा कुछ ठंडे हुए तो घर से बाहर चले गए। काफ़ी देर बाद अब्बा काजी साहब के साथ वापस आए और अब्बा ने शीजा आपी को इशारे से अपने पास बैठने को कहा तो हम सब की जान खलक में आ गई कि इस वक्त तो हमारे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। जब अब्बा ने काजी से अपना और शीजा आपी का निकाह पढ़ाने का कहा, हमें लगा कि शायद अब्बा किसी और के साथ शीजा आपी की शादी कर रहे हैं। अब्बा ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी और शीजा आपी को अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया था। हम सभी जानती थी कि ये गलत है। एक बाप अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, लेकिन अब्बा और काजी साहब के सामने ये बात कहने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं थी। शीजा आपी का हशर हम सब के सामने था। थोड़ी ही देर के बाद अब्बा और शीजा आपी का निकाह हो गया और हम सबको सब्र का गड़वा घूंट पीना पड़ा। आपी से छोटी फ़िज़ा आपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो सबसे ज़्यादा समझदार थी। काजी साहब के जाने के बाद शीजा आपी ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और फ़िज़ा आपी ने भी इनका साथ दिया, लेकिन अब्बा को इनका एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं साफ साफ कह दूं कि जो लड़की अपने बाप के घर में इज़्ज़त से ना रह सकती हो, इसे अपने घर की इज़्ज़त बना ले। इस शख्स से बढ़कर कोई कमीना नहीं हो सकता। अब्बू ने शीजा आपी का हाथ पकड़ा और इसे अपने कमरे में ले गए। शीजा आपी रोती सिसकती रह गईं। हम सब बहनें अपनी बेबसी पर मातम कर रही थीं। हम जानती थी कि अब्बा जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बा के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाए। जो हमारी बड़ी बहन थी, आज वो हमारी माँ बन चुकी थी। ये हम सब बहनों के लिए बहुत भारी था। हम सब बहनें एक ही कमरे में रहती थीं और इस वक्त सब की सब जाग रही थीं। फ़िज़ा आपी ने छोटी दो को ज़बरदस्ती सुला दिया था क्योंकि वो सिर्फ 6-7 साल की थी। इनको तो इस बात की समझ ही नहीं थी कि अब्बा ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली है। हम सब बहनों के दिलों में एक खौफ पैदा हो गया था कि अगर हम में से किसी ने भी अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन फ़िज़ा आपी ने फैसला किया था कि वो अब्बा के जुल्म के आगे खामोश नहीं बैठेंगी, बल्कि आवाज़ उठा कर रहेंगी। अगली सुबह जब शीजा आपी अब्बा के कमरे से बाहर आई तो इनका चेहरा रो रो कर सूज चुका था। इनकी हालत ऐसी थी, इनको देखकर ही हम सब बहनें भी रो पड़ी। शीजा आपी ने हालात के आगे सर झुका दिया था, लेकिन फ़िज़ा अभी सर झुकाने को तैयार नहीं थी और ये बात अब्बा भी जान गए थे। इसीलिए महीने के अंदर अंदर अब्बा ने अचानक ही फ़िज़ा आपी की शादी का ऐलान कर दिया और फिर एक दिन काजी साहब को अब्बा दोबारा हमारे घर ले आए और शीजा आपी का ज़बरदस्ती निकाह कर दिया। इनका निकाह किसके साथ हुआ था ये हम में से कोई भी नहीं जानता था और फिर वो रुखसत होकर हमारे घर से ऐसे गई कि दोबारा पलट कर ना आई। वो कहाँ गई, किसके साथ गई थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन अब्बा के इस फैसले के बाद हम में से कोई भी इनसे बगावत की हिम्मत कर ही नहीं सकता था और अब्बा ने भी हमसे कह दिया था कि जो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाएगा इसका अंजाम भी बहुत ज़्यादा भयानक होगा। बड़ी दो बहनें अपने बुरे अंजाम को पहुंच चुकी थीं। हमारा वो घर जो कभी हमारी आवाज़ों से गूंजता था, अब उस घर में सन्नाटा छा चुका था। हर कोई एक खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा था। अब्बा से शादी के बाद शीजा आपी बदल गई थी। वो चुपचाप करके काम काज करती थी और हम सबको अब्बा का हुक्म मानने की हिदायत करती। शीजा आपी के चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सा खौफ नज़र आने लगा। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन आपी से भी निकाह कर लिया। इसकी कोई गलती नहीं थी सिवाय इसकी कि वो बहनों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और अब्बा की नज़र इस पर पड़ गई थी। अब्बा जान गए थे कि वो बआसानी हम बहनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम में से कोई भी अब आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखता। 2 बहनें अब्बा के निकाह में जा चुकी थीं और एक बहन को अब्बा ने न जाने किसके साथ रुखसत किया था। मुझे तो अपने मुस्तकबिल का सोचकर खौफ आने लगा। पता नहीं अब्बा आगे हम बहनों के साथ क्या सलूक करने वाला था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और शीजा आपी भी उम्मीद से हो चुकी थी। अब्बा ने इन्हें हम बहनों के कमरे में वापस भेज दिया था और ख़ुद ज़रका से निकाह कर लिया
और शीजा आपी की जगह ज़रका ने संभाल ली। हम सब बहनें बस खामोशी से सारा तमाशा देख रही थीं। ज़रका आपी तीसरी बहन थी जो अब्बा के निकाह में चली गई थी। मेरे एक सुबह हमें पता चला कि रात के अंधेरे में समरीन आपी घर से भाग गई हैं। अब्बा ने रोते हुए बताया कि वो रात के अंधेरे में फरार हो गई है और अब ना जाने कहाँ ठोकरें खा रही है। ये खबर हम बहनों के लिए किसी क़यामत की तरह थी, क्योंकि जो बहन आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी वो अकेली कहाँ जा सकती थी। ना ही हमें किसी ने दुनिया के बारे में कुछ बताया था और ना ही हम पढ़ी लिखी थी। इस तरह अब्बा की मौजूदगी में घर से भाग जाना हमारे लिए एक मुअम्मा बन चुका था। वो कभी हल ना हो सका। शीजा आपी हमारे साथ हमारे कमरे में रह रही थी और ज़रका अब्बा के कमरे में थी। हर गुजरते दिन के साथ हमारे अंदर घुटन बढ़ती चली जा रही थी। ज़रका अब्बा के साथ इनके कमरे में रहती थी। सुबह जब वो कमरे से बाहर आती तो इसकी हालत देखकर लगता कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। जब से इसकी अब्बा से शादी हुई थी वो आधा दिन सोकर गुजारने लगी थी। फिर भी इनकी आंखों में हर वक्त नींद और हमारी नज़र आती थी। इनका वजूद थकन से चूर होता और अब्बा बहुत ही खुश और तरोताज़ा नज़र आता। अब्बा दिन ब दिन खिलता ही चला जा रहा था, जबकि ज़रका की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब्बा सारा दिन ज़रका के नाज नखरे उठाता। कभी ज़रका आपी को अपने हाथों से जूस पिलाता तो कभी फल खिलाता, लेकिन ज़रका की हालत बेहतर नहीं लग रही थी। शीजा आपी के हमल को 7वां महीना लग गया था और ज़रका बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैं जान गई थी कि अब्बा के लिए ज़रका किसी काम की नहीं रही, इसलिए अब मेरा नंबर है। और यही सोचकर एक एक लम्हा गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब्बा ने एक दिन कह दिया कि वो मुझसे निकाह करेंगे, क्योंकि ज़रका बहुत बीमार हो गई है और शीजा हामला है, तो इन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं अब्बा के कदमों में बैठ गई, बहुत मिन्नत की, बहुत रोई कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। आपका और मेरा रिश्ता किसी सूरत जायज़ नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझे अपने पाँव से एक ज़ोरदार ठोकर मारी और कहने लगे, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे आगे ज़बान चलाए। इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और तुझ पर लाखों रुपए खर्च किए थे कि तू मेरे सामने मेरे ही खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब्बा ने जैसे ही मुझे बालों से पकड़ा तो शीजा आपी हमारे बीच आ गई। कहने लगी, रेशमा को छोड़ दीजिए, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 14 साल की हुई है। अब्बा ने एक कहर बरसाती नज़र शीजा आपी पर डाली और कहा, अगर तेरे हमल का ख्याल ना होता तो आज तेरा वो हाल करता कि तू तौबा तौबा करती। इसी शाम अब्बा काजी साहब को ले आए। मेरा रोना धोना सब बेकार गया। ना ही शीजा आपी की मिन्नत समाजत काम आई थी और ना ही ज़रका की फरियाद। मैं भी अपने बाप के साथ निकाह के रिश्ते में बन चुकी थी, जबकि ये रिश्ता ही जायज़ नहीं था। मेरे निकाह के बाद मेरा अब्बा ऐसा खुश हो रहा था जैसे इसकी लॉटरी लग गई हो। अब्बा जो मेरा कभी आइडल हुआ करता था, मुझे इससे शदीद नफरत का एहसास हो रहा था। मेरे बाप ने रिश्तों को जिस तरह पामाल किया था, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। रात होते ही अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर अब्बा को गुस्सा आ गया और गुस्से में मेरे पास आए, मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अगर आज से तुमने मेरी बात ना मानी तो देख लेना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो समरीन आपी के साथ किया गया था। ये हम में से कोई नहीं जानता था। अब्बा ने तो हमें बस यही बताया था कि वो अपनी मर्जी से रात के अंधेरे में फरार हो गई है, लेकिन आज पहली बार अब्बा का सच सामने आया था। वो फरार नहीं हुई थी, बल्कि इनके साथ अब्बा ने ही कुछ किया था। मुझे समझ आ गया था कि समरीन आपी ने भी अब्बा के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी और इन्हें भी इसी चीज़ की सज़ा भुगतनी पड़ी। कहीं अब्बा ने समरीन आपी की जान तो नहीं ले ली। ये सोचकर मेरी जान निकल गई। हम 5 बहन में से एक बहन की शादी अब्बा ने बाहर की थी, बाकी मुझ समेत 4 बहनें निकाह में थीं, लेकिन चारों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। शीजा आपी पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी और कुछ पता नहीं था। ज़रका बीमार पड़ी थी और मैं आज ही अब्बा के निकाह में आई थी। अब्बा ने मुझे ज़बरदस्ती अपने बिस्तर पर बिठाया और इससे पहले को मेरे साथ कोई नाजायज़ रिश्ता कायम करता, एक ऐसा सच सामने आया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। अभी रात के 11 बज ही रहे थे कि घर का दरवाज़ा बुरी तरह से बजने लगा। हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं था।
अब्बा कहीं जाता तो ताला लगा कर जाता और ना ही कोई रिश्तेदार था, ना ही जान पहचान। फिर रात के इस वक्त कौन आ गया? अब्बा कुछ परेशान सा नजर आने लगा और फिर हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। खुद अकेला ही दरवाज़ा खोलने चला गया। अब्बा के दरवाज़ा खोलते ही भारी बूटों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। अब्बा के चीखों चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन शायद कोई भी इन्हें सुनने वाला नहीं था। एक एक करके सारे घर की तलाशी हो रही थी। फिर वो लोग हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गए। अपने कमरे को पहले ही बाहर से अब्बा ने ताला लगा दिया था। वो लोग जो आए थे अब्बा से कमरे का ताला खोलने का कह रहे थे, लेकिन अब्बा का एक ही इसरार था कि इस कमरे में कबाड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग अब्बा की बात मान नहीं रहे थे और अब्बा से आखिरकार उन्होंने ताला खुलवा ही लिया। जब दरवाज़ा खुला तो हम सब सामने मौजूद थीं, जबकि आने वाले लोग पुलिस की वर्दी में थे और हमें देखकर मुस्कुराए। एक अफसर ने अब्बा की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और हमें भी साथ लेकर इनके साथ थाने चले गए। हम नहीं जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है और अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हम खामोशी से अफसर के कमरे में बैठ गए जब वहाँ फिज़ा आपी को बुलाया गया। पूरे साल बाद हम अपनी बहन को देख रहे थे और खुशी से आंसू बह रहे थे। हमें तो लगा था कि हम जिंदगी भर कभी फिज़ा आपी को नहीं देख पाएंगे। फिज़ा आपी हम सब से मिलकर बहुत खुश हुई थी। फिर पुलिस अफसर ने बताया कि इन्होंने ये कार्रवाई फिज़ा आपी की शिकायत पर की थी। फिर इस एक के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब्बा ने फिज़ा आपी को जाली निकाह करवाया था। निकाह के नाम पर इन्हें फिज़ा आपी को आगे फरोख्त कर दिया था। इसी तरह फिज़ा आपी आगे से आगे बिकती जा रही थी। फिर ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर बहुत गलत काम होते थे। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद वहां पुलिस का छापा पड़ा और फिज़ा आपी को वहां से बाजियाब करवा लिया गया और फिज़ा आपी हम सब के लिए अब्बा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस वालों ने बारी बारी हम सब बहनों से बयान लेना शुरू किया और सबके सामने अब्बा का सच आ गया था। वो हमसे शादी इसलिए करता था क्योंकि हम जवान हो गई थी और अब्बा को मज़ीद बेटियों की ख्वाहिश थी। अब्बा इनसे बेटियां पैदा करवाकर वही सब कुछ करना चाहता था जो फिज़ा और ज़रका के साथ किया था। फिज़ा क्योंकि बागी थी और अब्बा इसे संभालने वाले नहीं थे, इसलिए अब्बा ने एक ही दफ़ा निकाह करवा कर फ़रोख्त कर दिया था। लेकिन ज़रका सीधी सादी मासूम सी थी, इसलिए अब्बा हर रात इसे काम करवाया करते। ज़रका को हर रात ही फ़रोख्त करते और वो सारी रात किसी और के साथ गुजार कर आती और बदले में अब्बा को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता। जो कोई अब्बा की नज़र में सीधी सादी होती उससे अब्बा खुद निकाह कर उससे गलत काम करवाते। जो थोड़ी सी अब्बा को तेज़ नज़र आती अब्बा उसको फ़रोख्त कर देते। और इससे बड़ा सच ये था कि अब्बा हमारा बाप ही नहीं था। अब्बा का सालों से यही कारोबार था। वो बच्चियों को अगवा करके लाते, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करते, फिर काम गलत करवाते, पैसा कमाते। फिज़ा आपी की तरह जो लड़की हामला हो जाती, इसका बच्चा होने पर अगर बेटा होता तो फ़कीरों के ग्रोह को बेच देते और अगर बेटी होती तो इसे पालता पोसता। और अब्बा के नज़दीक ये मुस्तकबिल की सरमायाकारी थी, क्योंकि एक एक बच्ची मुस्तकबिल में इन्हें लाखों रुपए कमा कर दे सकती थी। ये बात जानकर हम सब के कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। ना ही अब्बा हमारा बाप था और ना ही हम सब बहनों में से कोई खून का रिश्ता था। हम सब बहनें अगवाशुदा थीं और ये काम सिर्फ मेरा अब्बा ही नहीं करता था, इनका एक बहुत बड़ा ग्रोह था। अब्बा के कहने पर छापे मारे गए और मुख्तलिफ ग्रोहों को अरेस्ट किया गया। फिज़ा आपी हमें घर ले आए और हमारी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली। जब हम अपने घर आए तो आसपास के लोग हमें देखकर हैरान रह गए कि हम इतनी सारी बहनें इस घर में रहती थीं और वो सालों से इस बात से अनजान थे। हमारे बाप का गुस्सा और चिड़चिड़ापन महल्ले में मशहूर था, इसलिए हर कोई इनसे दूर रहता था। किसी ने कभी हमारे घर झांकने की कोशिश भी ना की थी। यह बात हमारे लिए बहुत हैरानकुन थी कि आस पड़ोस को इतने सालों से भी हमारी कोई खबर ना हुई। ये कैसे लोग थे? अब बाप पर मुकदमा चल रहा था, इनके ज़रिए इनके ग्रोहों को भी पकड़ा जा रहा था। लेकिन आजकल बच्चियों के अगवा का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। अपने बच्चियों की खुद हिफाजत करें, किसी को इसका जिम्मेदार मत ठहराएं।